Before starting branching concept, I want to introduce one more thing. Like this is alkyl group. So what are alkyl group? This is not stable species, stable compound नहीं है, वो एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि भी स्टेबल नहीं हुआ. तो ऐसा क्यों है? अगर मैं एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ तो what I left with alkyl group. Like for alkanes I have formula CnH2n+2. This is the general formula for alkanes. If I try to remove one hydrogen तो उससे क्या हमारे पास आ गया CnH2n+1. और यहाँ मैंने एक लाइन रिप्रेजेंट कर दी बॉन्ड के लिए. वो क्यों मैंने किया? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो गया है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया साथ में. तो उस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, जिससे ये मॉलिक्यूल, ये जो ग्रुप बना है, एक्चुअली मॉलिक्यूल नहीं है, ये जो ग्रुप बना, ये ग्रुप ऑफ एटम्स जो बना वो अभी स्टेबल नहीं है. तो मैंने यहाँ पे बॉन्ड रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे कोई नया एलिमेंट आएगा दैट विल फिल अप इट्स स्पेस व्हाटएवर इज लेफ्ट बाय हाइड्रोजन, एंड on the entrance of this special molecule that will replace this special atom, that will replace the hydrogen atom, then this group of atoms will become stable, this group will become stable. So whatever we have got after the removal of hydrogen atom is alkyl group. alkane से name क्या हो गया उसका? alkyl group नाम हो गया. Now let us see the different type of alkyl groups. From different kind of alkanes we have different category of alkyl groups, different types of alkyl groups. Let us see the naming of these alkyl groups and how, what is the structure, what is the number of atoms of carbon and hydrogen in that alkyl group. So I have written some of the alkyl groups over here. From methane, one carbon atom meth, and since this is CnH2n+2 सेटिस्फाई करने वाले ये कंपाउंड्स हैं, तो वहाँ से हमने क्या नाम दे दिया इसका? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, pentane, hexane. And if we remove one hydrogen from this molecule will become unstable and this will become group, alkyl group. This is CH3. After the removal of one hydrogen atom we have 5 hydrogen atoms. Likewise for all the series of these groups, these species. So this is methyl. From methane it will become methyl. एन हटाकर आइल लग जाता है. इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्साइल एंड सो ऑन. अब इनको हम यूज़ करेंगे, ये चीज़ें हमें यूज़ करनी है. इसमें से हम यूज़ करेंगे मिथाइल ग्रुप स्पेशली ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट में. तो जो ब्रांचिंग है दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर 3 कार्बन एटम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद ब्यूटेन हैविंग 4 कार्बन एटम्स. दिस इज द skeletal structure of butane in which I haven't marked hydrogen yet. So this is if I put hydrogen all over the place, so this will be complete formula for butane, and this is linear chain of butane, straight chain of carbon atoms are there, so this is termed as normal butane. And how this normal chain can be branched, this will give rise to another structure like this. This is called as 2-methyl propane. How this name I have chosen, how this name I have written, that is, this is IUPAC name, the name given by International Union of Pure and Applied Chemistry. So this is chemical name or scientific name or IUPAC name of this structure. इस ब्यूटेन के इस स्ट्रक्चर का ये नाम है, जिसका कॉमन नेम हम आइसोब्यूटेन भी कह देते हैं. अब हमने क्या किया ब्रांचिंग के लिए? 3 मेन कार्बन जो थे, 3 कार्बन को हमने चेन में प्लेस कर दिया, स्ट्रेट चेन में प्लेस कर दिया, और 1 कार्बन मैंने नीचे ब्रांचिंग के लिए डाल दिया. अब मेरे को हाइड्रोजन एटम्स पूरे करने हैं, तो लेट अस सी द बॉन्ड्स ऑफ दिस कार्बन एटम. ओनली सिंगल बॉन्ड इट हैज़, सो आई हैव टू मार्क, I have to put 3 hydrogen over here. Next, this carbon is having 3 carbon bonds, so 1 bond is completed by the hydrogen atom. Likewise for this, and for this carbon atom 1 bond with this carbon atom, and rest of the 3 bonds are completed by hydrogen atoms. So this is complete. If I put hydrogen all over the places, then I have complete formula for this structure of butane. And if I condense it, I will be having CH3. For CH3, CH, CH, CH3, and this is CH3. So ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो गया ब्रांचिंग के बाद. अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है? इस कंपाउंड का नेम देना है मेरे को. तो नेम देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम फॉलो करेंगे. फर्स्ट रूल क्या होता है? सबसे पहले सबसे लंबी चेन देखते हैं हम. अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये चेन ऐसी है, आपकी ऐसी चेन है, ये लॉन्ग चेन है और इसमें यहाँ बीच में ब्रांचिंग है. अगर मैं इसको ऐसे देखूं
ऐसे देखो, ये एक मेन चेन और उसके एंड पर यहाँ पर एक ब्रांच है, तो मैं इसको ऐसे भी देख सकती हूँ, पर वो आपको देखना विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो हम कोशिश करेंगे हम स्ट्रेट चेन पे ही रहें, क्योंकि अगर मैं इस चेन को आपको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, कॉपी को टर्न करके ऐसे भी देख सकते हो आप इस चेन को कि ये जो चेन है ये ऐसे है, बेंड कर दिया मैंने चेन को, ये लॉन्ग 1 2 3 कार्बन एटम्स की चेन है और इसके एंड पर एक ये और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। ये ऐसा ही अरेंजमेंट है, बस थोड़ा सा अलाइनमेंट आपको डिफरेंट लगेगी, इसलिए कंफ्यूजिंग लगेगा। तो मैं इस स्ट्रक्चर की तरह से नहीं जा रही, मैं सीधा एक ही स्ट्रक्चर फॉलो कराती हूँ आपको। CH3 CH CH3 और ये आया आपका CH3। अब इसका नेमिंग के लिए देखते हैं हम। अब मेन चेन में हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं फॉर कार्बन एटम्स, और मुझे इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जहाँ ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, मिथाइल ग्रुप, जहाँ ये वाला मिथाइल ग्रुप लगा हो उस पोजीशन के कार्बन एटम को लोवेस्ट नंबर मिले। तो नंबरिंग मैं लेफ्ट से भी कर सकती हूँ, मैं राइट से भी कर सकती हूँ, दैट इज़ अप टू अस। सो 1 2 3, so this is second carbon atom. If I start giving the numbering from right hand side, so in that case also this carbon atom, since it is lying in the middle, so it will be getting two number. So how naming is done? 2 at second position carbon atom, methyl group is attached. 2 comma methyl, sorry 2 hyphen methyl, and where this methyl group is attached, this group is attached to a main chain of carbon atoms having 3 carbon atoms. So this is propane. All the single bonds are there, so name will be 2-methyl propane. So there are two structural formulas possible for butane. One is straight chain, linear chain of butane, and other is branched chain of this butane. So this is how butane is available in two forms with same molecular formula C4H10, but two different structures are available to us. So such kind of structures are known as isomers of each other, and the property of certain compounds to exhibit themselves into two different or more than two structures having same formula is termed as isomerism. जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है इस तरह से स्ट्रक्चर्स अलग अलग एग्जिबिट करने की एक ही फॉर्मूला के कंपाउंड की, तो दैट इज टर्म्ड एज आइसोमरिज्म. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे पेंटेन. Since it is pent, so we have 5 atoms of carbon. Since it is ane series, alkane series, so double the number of carbon atoms to get the number of hydrogen atom and add 2 to it. So we will be having 12 hydrogen atoms. So this is how the straight chain or linear chain pentane molecule is formed. So we have this CH3, CH2, 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 CH3 condensed structure of this pentane available with us. Since this is straight chain, so this is normal pentane or N-pentane. Now let us try to draw the isomers of these pentane structure. So first arrangement, first possibility of the structure we have is you break the chain, you branch the chain. सबसे पहले 5 एटम्स थे, 5 की बजाय मेन चेन में एक एक करके कम कार्बन एटम आप करते जाओ. जैसे ब्यूटेन में हमारे पास पहले 4 थे, तो 4 से मैंने 3 में रिड्यूस करी चेन और एक कार्बन के ऊपर मैंने ब्रांचिंग कर दी. सिमिलरली अब मैं यहाँ पर 5 कार्बन एटम में से मेन चेन में 4 कार्बन एटम्स ले आऊँगी और इन बिटवीन कहीं पर भी मैं ब्रांचिंग कर दूँगी. ब्रांचिंग के लिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मैंने 4 कार्बन एटम उठा लिए और मैं यहाँ पर कार्बन लगा दूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पर कार्बन एटम लगा दूँ, बिकॉज दीज टू स्ट्रक्चर आर नॉट गिविंग राइज टू एनी न्यू स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज लाइक अ वायर इज बीइंग बेंट. दिस इज नॉट ब्रांचिंग. ब्रांचिंग कब होगी? जब मैं यहाँ पर एक कार्बन एटम लगाऊंगी. बट आई कैन नॉट पुट कार्बन एट द एंड बिकॉज वी आर अवेलेबल, बिकॉज हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर अवेलेबल टू अस? 5. So branching will be done only if I put this carbon atom instead of this position at any of these 2 carbon atoms. So let us start with that. So these are the 4 carbon atoms. Suppose I have placed carbon atom over here. So start naming the chain. Start marking the carbon atoms. This is the longest chain. Straight chain को हम longest chain की तरह देख रहे हैं, otherwise एक chain ये बन रही है आपकी.
ये आपकी 3 कार्बन एटम्स की चेन है और ये आपकी 4 कार्बन एटम्स की चेन है। तो बड़ी चेन कौन सी हुई? ये लॉन्ग चेन हुई आपकी 4 कार्बन एटम्स वाली। अब इस लॉन्ग चेन में मैंने यहाँ ब्रांचिंग कर दी, नंबरिंग देते हैं हम, लेफ़्ट से नंबर दिया हमने तो ये आया, और अगर मैंने राइट से नंबर दिया तो 1 2 3 4 ये नंबर आया। अब पहले वाले केस में ब्यूटेन में क्या था, मैं नंबर लेफ़्ट से दूँ या मैं नंबर राइट से दूँ, नंबर सेम 2 आ रहा था, तो इट was not at all creating trouble for us. But here we have seen that one time it is this carbon atom on which branching is done, it is getting number 2, and from right side it is getting number 3. So we have to neglect this number. The rule says, रूल जो नेमिंग के लिए रूल है इस कार्बन कंपाउंड का, आपको नाम कैसे देना है उसके लिए मेरे को ये वाली जो नंबरिंग है इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज रूल क्या कहता है, जिस कार्बन पर आपका ब्रांचिंग के लिए कार्बन एटम अरेंज्ड है या आपका एल्काइल ग्रुप अरेंज्ड है, क्योंकि इसी से एल्काइल ग्रुप बनेगा, उस कार्बन एटम को आपको लोएस्ट नंबर देना है। तो दिस विल बी 2 मिथाइल, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे, वो भी हम स्ट्रक्चर पूरा करते हैं। 2 मिथाइल और उसके बाद मेन चेन का नाम चलता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम्स हैं तो ये हो गया ब्यूटेन। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, दीज 2 आर वन एंड द सेम थिंग। वाई? बिकॉज इफ आई स्टार्ट नंबरिंग दिस कार्बन चेन फ्रॉम दिस साइड, राइट साइड, आई एल गेटिंग 2, एंड इफ आई गिव द नंबर फ्रॉम दिस साइड, सो आई एम गेटिंग 3 फॉर दिस कार्बन एटम। सो नेग्लेक्ट दिस, इसको हम कंडेम कर देते हैं, और ये नंबर आया 2। तो ये आपका फिर से वही 2 मिथाइल और ब्यूटेन, क्योंकि मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम्स हैं। तो दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर सेम, तो नेम विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट अनदर पॉसिबल स्ट्रक्चर वी हैव इज, वी कैन हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स। लाइक ये है आपका, ये स्ट्रेट आपकी कार्बन चेन हो गई, और इस स्ट्रेट चेन में मैंने 2 मिथाइल ग्रुप इसी कार्बन पे, सेकंड कार्बन ये नहीं है, इसी कार्बन एटम पे मैंने 2 कार्बन जो हैं वो अप एंड डाउन दोनों पोजीशन में लगा दिए। तो अब यहाँ पे इसका नेम कैसे आएगा? 2,2, बिकॉज ये सेकंड कार्बन एटम है, चाहे आप लेफ्ट से नंबर दो चाहे आप राइट से नंबर दो, दिस इज सेकंड कार्बन एटम, और इस सेकंड कार्बन एटम के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो नंबरिंग आपको दोनों के लिए ही करनी पड़ेगी। 2,2 इसका भी सेकंड नंबर है, 2,2 हाइफन कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं हमारे पास? 2। तो 2,2 मिथाइल, डाई मिथाइल, 2 हो गए तो डाई मिथाइल, और मेन चेन जिस पे लगा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, दैट कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स, तो दिस इज 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सो let me draw this structure for you. So these are the 3 isomers available for pentane. One is straight chain, normal pentane. Next is branching is done at second carbon atom. So if branching is done at second carbon atom, then we name it as, common name we write it as isopentane, or IUPAC name will be according to rules. The name will be 2 second position per methyl group. This is methyl group because this is CH3. So this is methyl group. So C2 methyl, and where this methyl group is attached to a chain containing 4 carbon atoms, so this will be butane. Next isomer we have is 2,2 dimethyl propane. You break the chain, you divide the chain into just 3 carbon atoms instead of 4. Earlier we have 5, then we used 4 chain carbon atoms. Next, in third case of isomer we have 3 carbon atoms, and rest of the 2 carbon atoms are to be attached at the second carbon position. So you write the name as 2,2 because 2 methyl groups are attached, 2,2 dimethyl propane. I have marked bonds around all the carbon atoms so that hydrogen can be written. Now if you check the number of hydrogen, the number of carbon and hydrogen in each of the case will be C5H12, and bonds are written, or bonds are represented in such a way that each carbon atom is having 4 bonds and each hydrogen atom is having single bond. Next अब हमने करना है हेक्सेन मॉलिक्यूल के लिए, जैसा हम ब्यूटेन और पेंटेन के लिए कर रहे हैं। तो हेक्सेन के लिए मैंने पहले स्ट्रेट चेन कार्बन जो है वो ड्रॉ कर दिए, मैंने मार्क कर दिए सारे, मैंने बॉन्ड्स ड्रॉ कर दिए, और इन सब पोजीशंस पर मुझे क्या मार्क करना है? हाइड्रोजन मार्क।
तो ये स्ट्रक्चर आया मेरे पास, हाइड्रोजन मैंने मार्क कर दिए सारे। ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला था और ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया मेरे पास, जिसका नाम क्या मैं देती हूँ, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब ब्रांचिंग के लिए मैंने 6 से पहले 5 कार्बन एटम्स मैंने लिए और उन कार्बन एटम्स में मैंने एक जगह कहीं पर भी एक सिंगल कार्बन एटम को अरेंज कर दिया। अब वो मैं चाहे यहाँ से अरेंज करूँ, इस सेकंड पोजीशन पे अरेंज करूँ, चाहे मैं राइट साइड से सेकंड कार्बन के ऊपर अरेंज करूँ, वो दोनों सेम ही स्ट्रक्चर राइज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, सेम रहेंगे वो स्ट्रक्चर्स। अब मैं सारी बाकी जगह पे हाइड्रोजन मार्क कर दूंगी, पर पहले हम नेम देखते हैं यहाँ पर। तो लेट अस स्टार्ट मार्किंग द नंबर फॉर कार्बन एटम। यहाँ से मैंने नंबर दिया तो 2 नंबर आया इस कार्बन पे। अगर मैं दूसरी साइड से इसको नंबर देना शुरू करूँगी तो वो नंबर आएगा 1 2 3 4। इस कार्बन एटम को हमारे पास चॉइस है कि हम 4 नंबर दें या 2 नंबर दें, तो हमें 2 नंबर देना है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि आपको उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर देना है जिस पर आपका चेनिंग वाला, ब्रांचिंग वाला कार्बन लगा हुआ है। और वो ब्रांचिंग, इस कार्बन के अराउंड कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 3, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा आपका 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 5, तो इट विल बी पेंटेन। Likewise for this we have 5 carbon atoms chain, straight chain, and for second position carbon atom we have branching done, and naming is to be done by giving the numbers to carbon atom. Let us give the number from right hand side. This carbon atom is having number 2, whereas if you start writing the number from this side, this carbon atom will get number 4. 4 is not to be taken because lowest number is to be given for the carbon atom on which branching is done. So name will be 2-methyl pentane for this also. Now let us have a look at third isomer, third structure of this hexane. Next we have done again 5 carbon atoms are taken in the chain. Instead of second carbon atom, now I have placed the carbon atom, this methyl group, at third carbon atom. Now if you start numbering, since this is in the middle of the chain, so whether you write number from this side or you write the number from this side, one and the same thing, because this carbon atom will be getting the number 3. So this will be 3, and this is what this carbon atom will be getting 3 हाइड्रोजन। क्यों 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं इसके, क्योंकि अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन लगाने शुरू करूँ, मैं हर कार्बन एटम पे हाइड्रोजन लगाना शुरू करूँ, तो बॉन्ड्स पूरे करने के लिए इस कार्बन पे 3 बॉन्ड्स, कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे, नेक्स्ट कार्बन 1 2 3 4, नेक्स्ट कार्बन 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लगेगा, नेक्स्ट कार्बन 1 2 3 4, नेक्स्ट कार्बन 1 with carbon and 3 bonds with hydrogen. Likewise for this carbon atom, single bond is made by this carbon and this carbon, and rest of the 3 bonds will be made by 3 hydrogen atoms. So this is your CH3 methyl group. So this will be 3-methyl pentane. This was 2-methyl pentane and this will be 3-methyl pentane. Now one more option we have, reduce the number of carbon atom in the main chain. Earlier we have 6, then we have 5, then we have 5, now we are having 4 carbon atoms. तो 4 कार्बन एटम की चेन बनाई, बाकी 2 जो कार्बन एटम हैं वो हमने मिथाइल ग्रुप लगाकर, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप्स हमने अटैच कर दिए। तो अब नंबर क्या होगा, अगर आप यहाँ से नंबर दो 1 2 3, यहाँ से नंबर दो तो 1 2 3, मतलब एक कार्बन एटम को 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा और दूसरे कार्बन एटम को 3 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। सो नेम विल बी 2, 3. अर्लियर वी हैव डन फॉर दिस पेंटेन 2, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, दैट सॉर्ट ऑफ नेमिंग वी हैव डन. नाउ इट्स 2, 3, since there are 2 methyl groups, dimethyl, and how many number of carbon atoms in the main chain, 4, so name will be 2, 3 dimethyl butane. अब next एक और अरेंजमेंट हमारे लिए पॉसिबल है। यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर हमने मिथाइल ग्रुप्स लगाए। अब मैं एक और पॉसिबिलिटी क्या लेके चल सकती हूँ कि मैंने 4 कार्बन एटम्स लिए और उस 4 कार्बन एटम्स के ऊपर मैं एक ही कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूँ, ईदर एट दिस पोजीशन और एट दिस पोजीशन. सो व्हाट 2 ऑप्शंस आई हैव,
इधर यहाँ पे लगाया मैंने तो ये आपका नंबरिंग यहाँ से देनी पड़ेगी मेरे को, और अगर मैं इस साइड से लगा रही हूँ तो नंबर मेरे को यहाँ से देना पड़ेगा। तो आइडियली अगर हम देखें तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. वाई दे आर आइडेंटिकल? बिकॉज वी हैव टू राइट numbers for this carbon atom on which we have done branching. 2 methyl groups are attached. तो अब देखते हैं कि ब्रांचिंग के साथ साथ हमें नंबर क्या देना है. 1 2 3 4. If we are giving the number from right hand side, this carbon atom is getting number 2, and if I am giving the number from left hand side, this carbon atom will be getting the number 3. So 3 we cannot write because lowest number is to be given for the carbon atom. So number for this particular carbon atom will be chosen as 2. This will be 2,2 hyphen dimethyl. And how many number of carbon atoms in the main chain? 4. So that will be butane. Similarly for this structure, 1 2 3 4, if you write the number from left hand side, if you write the number from right hand side, we have 3 for this carbon atom. Let us reject this number and take it as 2. So again this will be 2 dimethyl butane. So ideally these two structures are same, like जैसा हमने यहाँ पे किया था. तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स सेम हो गए, ये नया स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बनेगा. तो ये स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं मेरे पास. ये 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रक्चर्स मेरे पास पॉसिबल हैं फॉर फॉर हेक्सेन आइसोमर. दीज ऑल आर द आइसोमर्स फॉर हेक्सेन. So these are all the structures for isomers of hexane. How many isomers possible we have for hexane? 1 2 3 4 5. For this pentane we have 3 isomers possible, and for butane I have 2 isomers possible. One was N-butane and other was 2-methyl propane. So this is all about isomers.